इतना मासूम सा क्वेश्चन था. You need to understand social media is a vicious cycle. I know बहुत simple sound करती हैं ये सब चीज़ें, but उतनी मुश्किल होती है to look in the mirror and like yourself after you've changed drastically. And जब मैं भूखी होती हूँ मैं extra emotional हो जाती हूँ. Have you both had sex? If yes, how you both felt after that, and did it make your love strong? I didn't. Hi everyone, welcome back to the channel. This is Ishita with 2 E's, and we are doing a Q&A after ages. Like, my proper Q&A was almost a year back. So I thought let's bring back the good old Q&As. While answering some of your questions, I am also going to be doing my makeup because मुझे थोड़ी बहुत रील शूट करनी है. So मैंने सोचा Q&A भी शूट करना है, रील भी शूट करनी है, तो मेकअप साथ में करते हैं. And this is the kind of look that I usually do. Actually मैंने ये सेम लुक किया था जब भी मैं गोवा में बाहर जा रही थी, या फिर मैं अभी भी बाहर ऐसे रैंडमली किसी फ्रेंड से मिलने जाती हूँ तो मैं यही करती हूँ. This is a no foundation look. कोई फाउंडेशन नहीं है यहाँ पे. I hope you guys find this helpful and enjoy this. Now let's just begin. So this is my squeaky clean face. I'm just gonna start with the questions and उससे पहले हम लिप बाम लगाने वाले हैं. This is my new favorite lip balm. I mentioned about it in my summer essentials. Juicy chemistry का है. Dent बना चुकी हूँ मैं, इतना गंदा इसमें. So the first question is growing up scary? Brackets में after 25. I am 26. And honestly, growing up can be scary for people at different ages. ऐसा नहीं है कि after 25 ही वो start होता है. जब आप job करना start करोगे, जब you start facing the real world ना, तब you know ऐसे responsibilities and future का scare आने लगता है, समझ में आने लगता है. But I can tell you it becomes easier as well जब आप you know एक level up करते रहते हो. Like अभी starting में आपको लगता है कि घर कैसे manage करेंगे खुद, जब you are earning, you are no longer in a hostel. But धीरे धीरे it gets easier when you have more people around you. जैसे आप घर sharing पे लेते हो when you first start working, तो सारे आपके आसपास के लोग भी उसी stage पे होते हैं. दोस्तों के साथ share कर करके, family से बात कर करके, धीरे धीरे करके आपका confidence level बढ़ता रहता है. So do not be scared about it so much. I remember I was around 20 or 21. किसी का birthday था, they were turning 21 and we all started crying in the mess कि shit हम ऐसे 4 साल में 25 के हो जाएंगे, life खत्म हो जाएगी. And cut to my actual 25th birthday, I was the happiest. Basically, adulthood in general is very overwhelming, not scary. It can be overwhelming because इतनी सारी responsibilities आ जाती हैं आपके ऊपर, but it's manageable. Now I use vitamin C a lot. So vitamin C is a part of my, you know, morning routine. How do you feel when people look at you after wearing bikini or revealing clothes? Honestly बताओ तो मैं उस टाइम पे कुछ सोचती नहीं हूँ. हम जब एक secluded से बीच पे थे जहाँ पे I was wearing a bikini, सुबह के 6 बज रहे थे and वहाँ पे एक पूरी वेकेशन ग्रुप आया था. लाइक 4-5 कपल्स थे. They were kind of staring, but मुझे उस टाइम पे बिल्कुल ध्यान नहीं था उनका. फिर honestly मैं उस टाइम पे इतना खुश थी कि एक प्यारा सा सुंदर सा बीच मिला है हमें. With age now you start understanding कि not everybody is worth your time and worth your attention. हटाओ यार, जिसको घूरना है घूरे. तुम अपनी वेकेशन का टाइम क्यों वेस्ट करने वाले हो? How do you plan your day and how do you stick to it? I am failing at adulting. Dude, आज का एग्जाम्पल एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है. सो मैं सुबह जिम गई, थैंक गॉड हम जिम गए. जिम से आके ब्रेकफास्ट वगैरह करते करते 12-12:30 बज गए. उसके बाद आई वॉन्टेड टू सिट टू शूट एट 1:30 एग्जैक्ट, बट आई रेड समथिंग अबाउट माई सेल्फ एंड फिर मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया. मुझे 1 घंटे बाद रोने के बाद रियलाइज हुआ कि मैं भूखी थी, एंड जब मैं भूखी होती हूँ मैं एक्स्ट्रा इमोशनल हो जाती हूँ. ओके, विटामिन सी के बाद आई गो अहेड विद अ सनस्क्रीन. आई विल नेवर स्किप अ सनस्क्रीन. ऑल्सो मैंने शूट के लिए प्रेप भी प्रॉपरली सुबह कर लिया था. आफ्टर टेकिंग अ शावर आई डिड माई फेस स्क्रब. आई लाइक स्क्रबिंग माई फेस once a week. It gives me a smooth, you know, base to work with. And I've been using Kama Ayurveda's Kumkumadi Brightening Ayurvedic face scrub. So मैंने सुबह नहाने के बाद इसको ऑलरेडी यूज कर लिया था. It's just sometimes my schedule do not go according to me. Now talking about this face scrub, so it's a luxurious face exfoliator that has the goodness of Ayurvedic Kumkumadi oil along with other skin repairing ingredients. Now Kumkumadi oil is a miraculous beauty fluid that is made from 12 precious and very rare skin ingredients that help clearing your complexion, works on fine lines and other signs of aging, along with promoting new cell growth as well. There's also Kashmir saffron which helps in pigmentation and brightening your skin and also evens
out the damaged skin along with very finely crushed almonds. They nourish your skin while taking care of all the impurities in your skin. What you have to do is damp skin के ऊपर इसको हल्का सा fingers पे लो and start scrubbing. Now I do not mean रगड़ो अपनी स्किन को, बहुत ही gently use करना है. I take around 1 minute पूरा मैं इसको प्यार से scrub करती हूँ अपने पूरे face पे, including my forehead, चिन एरिया जहाँ पे बहुत ब्लैक हेड्स होते हैं मुझे, सॉरी व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स यहाँ नोज पे होते हैं. सो दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी व्हेन आई एम स्क्रबिंग. द फाइन आलमंड्स टेक केयर ऑफ द ब्लैक हेड सिचुएशन एंड वैसे भी पूरा स्क्रब इज सो नरिशिंग एज वेल. बहुत ड्राइंग नहीं फील होता है इसको धुलने के बाद भी, एज यू कैन सी इन द वीडियोज. सो इन केस यू आर लुकिंग फॉर समथिंग वेरी सिमिलर टू दिस, I will link this in the description box for you guys. I love using it and I'm sure you guys will enjoy using it as well. I think I forgot to mention this comes with a small wooden spatula as well. बड़ा मजा आता है मुझे इससे निकालने में चीजें. Feels fancy as well. Sorry. Do you feel shy in front of your boyfriend while changing clothes? यार ये कैसा क्वेश्चन है यार. मैं सच बता रही हूँ, कुछ लोगों ने इतने weird क्वेश्चन पूछे. I did say yes, I asked for awkward spicy questions, but this is some next level. Anyways, coming back to the question, so मेरा आज का दिन ही बिल्कुल शेड्यूल के अगेंस्ट गया because I was just not feeling it mentally. 2 बजे तक मुझे बैठ जाना था and अभी 6 बज रहे हैं. So honestly, I do not follow any schedule because मेरा काम ऐसा है, कभी कभी मेरे पास last minute campaigns भी आते हैं, especially for Instagram. YouTube के लिए last minute कभी कुछ नहीं हो पाता because I am usually booked 3 हफ्ते पहले. Thank God, like I'm really grateful for this much work. What I do is कि मैं सुबह उठ के बस gym कर लूँ किसी तरह. That is the only thing that I do. Do you miss going to office? If you could manage both the things, would you choose that? Ideally, मुझे ये question answer नहीं करना चाहिए because ये हर Q&A में आता है. No, I do not miss my office. The only thing that I sort of miss from office is the social life that I had. कभी किसी teammate का birthday हो गया, कभी किसी office में कोई event हो गया, कुछ ना कुछ होता रहता है आपकी life में. Office parties हो गई, colleagues के साथ बाहर घूमना फिरना हो गया. Right now, I am my only बॉस, वर्कर, एडिटर, फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, सब कुछ मैं ही हूँ. मैं अकेले रह के बोर हो जाती हूँ उस जॉब में. आई डोंट थिंक सो अब मैं वापस 9 to 5 लाइफ ज्वाइन कर पाऊंगी. नॉट बिकॉज आई हैव समथिंग अगेंस्ट 9 to 5 जॉब. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेबल वे टू अर्न मनी एंड लीड अ वेरी गुड लाइफ. इट्स जस्ट मेरी डिग्री CS में थी. मुझे सबसे ज्यादा इशू यही था कि मैं IT के लिए नहीं बनी हूँ. आई न्यू इट. आई वॉन्टेड टू परस्यू सम डिग्री इन फैशन एज वेल, बट समहाउ मुझे YouTube picked up at the right time, so I didn't have to go for another degree. Is it fine to lie to your parents and if they don't allow you to go on trips even if you don't do anything wrong? इतना मासूम सा क्वेश्चन था. I think I got a similar question कि how did I convince my parents to go for a trip without them accompanying you, as your parents always let you go anywhere, that too with your boyfriend. And a very sweet subscriber actually responded to this as well. I love how caring you guys are. मुझे इस क्वेश्चन से रियलाइज हुआ कि ये सारे क्वेश्चंस ना मैं इंस्टाग्राम पे बहुत जनरली लेती रहती हूँ. वी डू दीज वीकली Q&As ना. अब मैं इतनी स्ट्रेटेजिक नहीं हूँ कि ओ माय गॉड अगर मैं कुछ इंस्टाग्राम पे शेयर कर रही हूँ मैं भूल जाती हूँ कि मैंने यूट्यूब पे नहीं बताया ये. आई थिंक यू शुडंट कंसिडर मी एज अ आइडियल बिकॉज मेरी सिचुएशन इज नॉट आइडियल. बहुत ही how do I say it? It's not very normal. Like I don't live with my parents. There are some differences and we are figuring it out. At least I am figuring it out कि मुझे आगे क्या करना है. बहुत टाइम पहले से, I think ever since I started earning, which was at the age of 22, तब से मैंने परमिशन लेना छोड़ दिया था अपने पेरेंट्स से. I would just inform them कि मैं जा रही हूँ. चाहे वो मेरी बाली की ट्रिप हो, चाहे वो मेरी गोवा की ट्रिप हो, जिसके लिए मैं अकेले ट्रिवेंड्रम से गोवा तक ट्रेन में गई थी, which was not a good experience. But talking about your case, see, इंडिया में 2 तरीके के पेरेंट्स होते हैं. एक होते हैं which try to learn things, which try to keep up with what their kids want, prioritize their kids. एंड दूसरे होते हैं जो सोसाइटी क्या कहेगी, ये फलाना ढिमकाना, थोड़े नॉट सो मॉडर्न वाले पेरेंट्स. आई नो बहुत ही बुरी एडवाइस है बट झूठ बोलना पड़ता है. आई हैव फ्रेंड्स who are at the age of 26, 27 और वो अभी भी अपने घर पे झूठ बोल के जाते हैं. तो आप जिस भी एज में हो पेरेंट्स के साथ रहना सीखना पड़ता है यार. जब तुमको पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स विल नेवर इवॉल्व, आप जिंदगी भर एक्सपीरियंसेस को मना नहीं कर सकते. ट्रस्ट मी, दे विल टेल यू कि हाँ शादी के बाद कर लेना, शादी के बाद आपके इन लॉस होंगे, तब क्या करोगे. तो बहुत प्यार से सोचो कि क्या ऐसी गलती से भी थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पेरेंट्स समझेंगे, चाहे वो माँ हो पापा हो कोई भी. नहीं तो यार झूठ बोलो और निकलो. अगर मैं इतनी बुरी एडवाइस दे रही हूँ ना छोटे बच्चों को, बट दिस इज ट्रू यार, करना पड़ता है. यू कांट बी. आशु
Is it fine to lie to your parents if they don't allow you to go on trips, even if you don't do anything wrong? What's the most stupidest thing one has commented about your body or weight? आज ही दिखाती हूँ मैं, आज का ही मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है. Somebody left this very sweet comment. So ये कमेंट आया मेरी बहुत ही पुरानी वीडियो पे, बहुत पुरानी, लाइक मेरे कॉलेज के टाइम की वीडियोस का, जो बहुत ही रैंडम पार्ट था मेरी यूट्यूब जर्नी का. मैं इसको पढ़ के सबसे पहले तो हंसी, दैट हाउ इजी इट इज फॉर पीपल टू जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर लुक्स विदाउट इवन नोइंग यू. ये जिस टाइम की बात कर रही है ना, उस टाइम पे आई वॉज एट द वर्स्ट पॉसिबल स्टेज मेंटली. मेरे लिए हर दिन यूज्ड टू बी अ स्ट्रगल. मेरा जो बॉडी वेट था, इट वॉजंट बिकॉज आई वॉज डूइंग सम डाइटिंग या फिर आई वॉज वर्किंग आउट. आई वॉज मेंटली, I didn't. मेरी anxiety had taken over every aspect of my life, including my diet and my food. मैं actually underweight थी उस time पे. My weight used to be 43-44 के around, and for a person who's 5'4", आप खुद calculate कर लो, तो BMI should be around 15 or 16 I think, which is underweight. तो stupid comments तो मुझे हर बार आते हैं, but this was something that really triggered me. How do you validate yourself with the weight that you've put on? I was always slim and gained 15 kgs recently. Babe, high five. I am currently at 73 kgs. I do not validate myself. I am struggling to lose weight. हर हफ्ते मैं सोचती हूँ कि अब तो मैं रेगुलरली जिम जाऊँगी, बट मेब हैज़ बीन रियली बैड. आई थिंक हर्षित के जाने से बाद ना, हैज़ बीन रियली नॉट अटेंटिव अबाउट व्हाट आई एम कंज्यूमिंग. और मैं जिम जा भी रही हूँ कि नहीं जा रही. हफ्ता तो ऐसा भी है कि मैं सिर्फ 2 बार जिम गई हूँ. क्या मैंने अभी रियलाइज कि मैंने मेकअप करना बिल्कुल छोड़ दिया. वेट, मुझे गेट रेडी विद मी ना शूट नहीं करना चाहिए. वैलिडेट, मुझे एक्चुअली ज़्यादा क्वेश्चन समझ नहीं आया. व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडेट योरसेल्फ? ऑल आई नो इज आई डू नॉट हेट माई सेल्फ इवन एट 73 kgs. आई वुडंट हेट माई सेल्फ इफ आई वाज 60 or 55 or 43. Actually, I did hate myself a little जब मैं कॉलेज में थी and I was underweight. I don't love it to the extent कि मैं अनहेल्दी होने को वैलिडेट कर दूँ. I know I'm बहुत ही अनहेल्दी वेट पे चल रही हूँ. My PCOD is flaring. हर दूसरे दिन एक नया पिंपल निकल के आता है. I'm trying. मैंने जिम अप्रैल में इसीलिए ज्वाइन किया ताकि I can lose weight and I'm still in that process. I know बहुत नॉर्मल होता है when you look at yourself in the mirror and you feel like यार क्या कर लिया हमने अपनी बॉडी के साथ. At that point you have to remember कि it's never too late. जो भी किया है तुमने खुद किया है, तुमने खुद ही खाना खाया है. इट कुड बी बिंज ईटिंग की आदत लग जाना, या फिर यू आर जस्ट ईटिंग योर इमोशंस. दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी. यू हैव टू टेक चार्ज एंड गेट योर सेल्फ ऑन ट्रैक. आई नो बहुत सिंपल साउंड करती हैं ये सब चीज़ें, बट उतनी मुश्किल होती है टू लुक इन द मिरर एंड लाइक योर सेल्फ आफ्टर you've changed drastically. बट एक चीज़ पूरी दिमाग में बांध लो, दैट you shouldn't be looking for validity outside या किसी और बंदे से. इट शुड बी ऑलवेज यू, स्पेशली when it comes to your body. आपकी बॉडी, चाहे आप अंडरवेट हो, ओवरवेट हो या नॉर्मल वेट पे भी ना, 1000 लोग आके 1000 नुस्खे निकाल देंगे, उसमें देंगे फ्लॉज निकाल देंगे कि ओ कमर थोड़ी और पतली होनी चाहिए थी, हिप्स थोड़े और वाइड होने चाहिए थे, नाक कैसी सी है, दांत कैसे से है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि आप अपने आप से अच्छे से बात करें. यू आर बीइंग काइंड टू योर सेल्फ. बिकॉज बाकी लोग मे बी हफ्ते में 1 दिन बोलेंगे, 10 दिन में 1 बार बोलेंगे, बट आप you talk to yourself every single day. If one day I wake up and start hating myself for the weight that I've gained, trust me, 3 दिन के बाद मैं खुद वीडियोस बनाने में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगी. बिकॉज आई हैव टू लुक एट माई सेल्फ. आई हैव टू यूज दिस बॉडी टू शो यू क्लोथ्स. आई हैव टू यूज दिस फेस, दिस बॉडी, these arms, these flabby arms to make videos. अगर मैं खुद इन्हें हेट करने लगूँगी तो हो गया काम. So you have to love yourself, और not love तो at least be neutral with your body. You know कि हाँ you are in a work in progress. I know मैं 73 kgs पे हूँ. I know I have to desperately get back to 63 at least. पता है 63 मेरे लिए एक ज़माने में overweight होता था. And right now I'm at 73. One of the biggest lessons that I've learned in adulting is you have to be kind to yourself. There would be days when you are doing really well, there would be days you're doing normal, and there would be days when you'll be extremely struggling. तीनों दिनों पे you have to be kind to yourself. किस दिन आपका काम अधूरा रह गया, कोई बात नहीं, सोचो कि क्या गलती करी उस दिन, कहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, and next day improve that. That is very important. So मैंने सिर्फ कंसीलर लगाया है, that's it. And I'm gonna powder it, set it. Yeah.
Okay, I see influencers leading very lavish lifestyles with lots of money from sponsorships and YouTube and Instagram. It makes me really sad as a government job aspirant struggling since last 4 years, still dependent on family at 25 age, that even if I get a job, it would mean living paycheck to paycheck and having a home, car, family, and still a lavish life is just a dream of mine. I know what you mean because even I go through that myself. एक चीज बता दूं, अगर आप अपनी लाइफ में मनी को इतना हाई प्रायोरिटी दोगे ना, तो you'll never be ever be happy. जल्दी ये सीख लिया था कि अगर if I start comparing myself to the people who are rich, बहुत प्रिविलेज लोग हैं, तो हो गया. ऑनेस्टली मेरे पास इसके लिए कोई आंसर नहीं है, बस एक सजेशन और एडवाइस है. आई नो सोशल मीडिया हैज टेकन ओवर आवर लाइफ्स. इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह एक व्लॉगर है, एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर है हु शोइंग देयर लैविश लाइफ. अगर आपको उससे दिक्कत हो रही है, अनफॉलो दैट. फॉलो समबडी हु शोइंग यू द लाइफस्टाइल व्हिच इज सस्टेनेबल फॉर यू. देयर आर पीपल हु डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल. बहुत ही मिडिल क्लास लोग भी व्लॉग करते हैं, आप उनको फॉलो करो. मैं अपनी बात करती हूँ, ये इनसिक्योरिटी मुझ में भी आती है. कभी कभी मुझे भी लगता है यार, मुझे भी हर चीज़ महंगी खरीदने से पहले एक व्लॉग बनाना चाहिए, टाइटल में बड़ा बड़ा लिख देना चाहिए कि मैंने इस एज पे ये किया था, मैंने इतना खरीदा, इतना पैसा खर्च किया. बट मुझसे वो चीज़ें होती नहीं है, एंड आई हैव मेड पीस विद दैट. मैं सच बता रही हूँ, इट वुड बी रियली नाइस फॉर यू इफ यू डू नॉट मेक इन्फ्लुएंसर्स एंड आवर लाइफस्टाइल्स योर आइडियल या समथिंग दैट यू एस्पायर. इट्स नॉट गोइंग टू बी सेम. हम एक बिजनेस चला रहे हैं एंड दीज आर ग्राउंड रियलिटीज. सर्विस क्लास सैलरीज और बिजनेस क्लास सैलरीज में बहुत डिफरेंस होता है. जितना रिस्क होता है ना बिजनेस में, उतनी सिक्योरिटी होती है सर्विस में, एटलीस्ट इन सम एरियाज. आई फील लाइक आप बहुत सारे ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हो हु हैव दैट लैविश लाइफस्टाइल एंड दैट गेट्स देम व्यूज. तो वो और करते रहते हैं. दैट्स हाउ दे मेक मनी. आई हैव सीन यूट्यूबर्स जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं एंड दे शो देयर लाइफस्टाइल कि वो दिन भर क्या कर रहे हैं, उनका शेड्यूल क्या होता है, उनका स्टार्टिंग रूटीन क्या होता है. आई थिंक यू शुड फॉलो देम. ऑल्सो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो यार, दैट इट सेल्फ रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज एंड हार्ड वर्क. कुडोज टू यू, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. ओके, मुझे वीडियो के एंड में 2 पॉइंट्स और बताने थे, तो आई एम जस्ट गोना क्विकली गेट थ्रू देम. पहली चीज, यू आर नॉट अलोन. as I have such days as well जहाँ पे I compare myself to other creators. I feel like oh my god, they have so many privileges, इनके पास इतनी facilities है, they have such a loving family. Comparisons are very normal and human nature होता है, ये आप करते ही हो. If you are a software engineer and you are going through the same phase, I know my colleague from Infosys has started a YouTube channel. She makes videos around software engineering, उसका experience in different companies. You can watch her. There are always going to be people who represent you and would be relatable to you, but the thing is उनको views नहीं मिलते. People want to watch that, इसलिए उनको ज़्यादा views होते हैं, and at the same time उस lavish lifestyle को देख के people are getting insecure themselves as well. You need to understand social media is a vicious cycle. जिसको जिस टॉपिक से व्यूज मिलेंगे ना, वो वही बार बार करता रहेगा. जैसे मुझे एक बार सेक्स टॉय की वजह से व्यूज मिले, उसके बाद अ लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स अप्रोच्ड मी, तो ऑब्वियसली आई हैड अ बेटर चांस टू मेक मनी एज वेल. मैंने कोलैबोरेशंस भी किए, बट राइट नाउ आई एम टेकिंग अ स्टॉप. मैंने कहा बहुत हो गया, अब नहीं करना मुझे. बट अगर फ्यूचर में मुझे एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऑफ कोर्स आई विल एंडोर्स अनदर ब्रांड. हाउ मेनी टैटूज यू हैव एंड आर यू प्लानिंग फॉर मोर इन द फ्यूचर? सो आई हैव 4 टैटूज. 2 फिंगर टैटूज हैं, एक यहाँ पा लिखा हुआ है, एक ये वाइकिंग सिंबल है ऑफ क्रिएट योर ओन लाइफ, ये, और एक सनफ्लावर जो यहाँ है. मेरे दिमाग में एक वेरी स्पेसिफिक सिंबल है. आई काइंड ऑफ वांट टू गेट इट डन. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, बट मुझे लखनऊ से नहीं कराना. आई एम स्टिल नॉट श्योर ऑफ अ वेरी नाइस टैटू पार्लर हियर, सो इसलिए आई एम वेटिंग. बस डिजाइन बिल्कुल रेडी है. आई नो वेयर टू गेट इट एज वेल एंड इट्स सुपर क्यूट, but we'll have to wait for it. What are some things on your bucket list? So I have 2 things related to travel as of now. मुझे एक ट्रिप लेनी है अपने भाई के साथ before August, and I had a place like बिल्कुल ready थी मेरे दिमाग में, but because of some visa issues we won't be able to travel there. तो अब मुझे उसके साथ कहीं इंडिया में ट्रिप लेनी पड़ेगी. And next month I got a chance to go to that exact place with my friend, but मुझे मना करना पड़ रहा है because in the coming months I have a lot of खर्चाs, a lot of big expenses, so उसकी वजह से I had to say no to that trip. But I do want to go on a trip with my brother in the coming months. दूसरी thing on my bucket list is solo trip, but I don't think so it's gonna happen this year now. You know what? अभी ये जो मैंने concealer लगाया है, I'm gonna set it. मैंने बस concealer powder कर लिया है, that's it.
You have been in a long distance relationship with Harshit with so many years. How do you guys manage it so well? As when I see your videos together, it feels like you just started fresh and the spark is still so strong. Thank you so much. It's so weird ना, कुछ लोगों को लगता है कि our chemistry is so strong, whereas some people think कि मैं प्यार में पागल हूँ and Harshit is really not interested. सब पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है. I think what worked for us is कि हम लॉन्ग डिस्टेंस में जाने से पहले 5-6 साल तक बहुत ही क्लोज थे. सेम स्कूल, सेम कॉलेज में सेम क्लासेस, लिटरली सेम क्लास. एंड लॉन्ग डिस्टेंस पे व्हाट वर्क फॉर अस इज गिविंग ईच अदर सम स्पेस. आई न्यू कि वो मास्टर्स के टाइम पे बहुत बिजी होने वाला है विद द इंटर्नशिप्स, विद हिज थीसिस एंड ऑल. वो बिजी रहता था. अब प्लस मेरे पास भी एक फुल टाइम जॉब थी. उसके अलावा आई हैड फ्रेंड्स टू मीट. उसके पास भी एक अलग फ्रेंड सर्कल था. तो हमें पता था कि हम हर दिन बात नहीं कर पाएंगे, ऐसे टाइम निकाल के वीडियो कॉल्स नहीं हो पाएंगी हर दिन. सो वी यूज्ड टू बी ऑन टेक्स्ट पूरे टाइम, या फिर जब भी हमें टाइम मिलता था. समहाउ वी बोथ हैव बीन वेरी अंडरस्टैंडिंग. I think सबसे important quality that can make or break your long distance would be understanding the other person as well. अगर तुम्हें पता है कि वो बाहर ट्रिप पे गया है, you have to be understanding कि वो ट्रिप पे ही वक्त निकाल के आपको up to date नहीं कर सकता. You can wait for 4-5 days कि जब वो ट्रिप से वापस आ जाए, तब you guys can talk. You have to understand कि आप हमेशा प्रायोरिटी नहीं रहोगे सामने वाले पर्सन की लाइफ में. एंड इससे ज़्यादा एडवाइसेस मैंने एक लॉन्ग डिस्टेंस Q&A कर दिया है, so you watch that. Does YouTube growth borders you? And so Also, do you think of going back to corporate life? मुझे सबसे ज़्यादा bother YouTube growth से ज़्यादा ये करता है that I do not have a team and it's a struggle to find somebody in Lucknow. I want to move to Delhi or Mumbai बहुत जल्दी, but because of some personal issues, I have to delay it for a few more months. It's gonna happen, but जब भी होगा तब पता चलेगा. मैं पता नहीं क्यों questions answer करने के चक्कर में बिल्कुल मेकअप करना भूल गई हूँ. So I'm just gonna quickly do my brows. बहुत ही हल्का, एकदम स्टार्क कुछ भी नहीं करती हूँ मैं. I am going to apply a mascara. La 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 la. So I made Harshit get me some brands जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जैसे Rare Beauty and Milk Cosmetics. So I have the Nearly Mauve Melting Blush. It comes in this very cute सा packaging, like कितना cute सा है. और इसके अंदर तो it's even more cute. It's a beautiful mauve color as you can see. So I'm gonna apply this to my cheeks. On normal day to day मैं कुछ contouring वगैरह नहीं करती, बस conceal, powder, blush. As you can see थोड़ा red हो गया है ना cheeks. That's it. That's all I want. Some days I use the same thing on my eyes as well, but आज नहीं करेंगे. आज I'm gonna use it on my lips. I use this. I do this a lot just to give that monochrome look. You know, बहुत ही natural सा color आया है. And इसी के ऊपर I'm gonna just apply some gloss. The gloss is from ELF. Okay, so my camera died. मैंने इतनी बातें कर ली. I'm done with the lips and stuff. I'm just gonna apply a setting spray. मैं ये थोड़ा ना push करती हूँ अपने under eyes पे, so that it gets set अच्छे से. And this is the final look. मैंने बाल खोल लिए हैं. I've added golden half hoops. Usually skip eyeshadow, just a mascara, brows, tint, gloss on my lips, and I'm done. Also, इसी के साथ let's move to the last question as well. Have you both had sex? If yes, how you both felt after that, and did it make your love strong? Somebody very sweet has actually commented on this question कि ये कौन पूछता है, and then this person has responded कि obviously she pretends to be this modern and she wanted some awkward spicy questions. तो यही चाहिए था ना उन्हें. And I know I discuss कर रखे हैं, videos बना रखे हैं about sexual toys, but that was from a perspective of educating some people. Like sexual toys को थोड़ा normal करना to start a conversation. I did not mean to start a conversation around my sexual life. Some people have asked me the sex position that I like. Please yaar, please. And I feel this person is quite young. एक एज होती है ऐसे हमारी, जब हम नए रिलेशनशिप में आते हैं, यू थिंक ऑफ सेक्स एज समथिंग वेरी प्योर एंड समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग विद ओनली योर लव्ड वंस, बट विद एज यू रियलाइज इट्स जस्ट समथिंग योर बॉडी नीड्स. इट डजंट हैव टू बी समथिंग कि ओ इससे प्यार गहरा होता है. नहीं, आप किसी से प्यार नहीं करते हो, उसके साथ भी सेक्स कर सकते हो. आई डू नॉट मीन टू से कि ज़रूरी है कि ऐसा करो, बट सेक्स कीप सेक्स एज अ वेरी नॉर्मल थिंग. अगर आप सेक्स को इतनी इंपॉर्टेंस दोगे एंड इन केस यू गॉट इंटीमेट विद योर पार्टनर, आप हमेशा उसी जोन में रहो कि नहीं कि जैसा भी है ये बंदा, आई हैव हैड सेक्स विद हिम,
मुझे इसी के साथ रहना पड़ेगा. Like we've done something so huge. मैं ऐसे छोड़ सकती हूँ. He is my first person जिसके साथ मैं इंटीमेट हुई, और बाकी मैं अपनी लाइफ का तो नहीं बताने वाली हूँ. सेक्स से ना प्यार बढ़ता है ना कम होता है. Relax. Alright, with this we've come to the end of this video. I really hope you guys enjoyed it, got to know me a little better. I will पक्का make sure to do Q&As हर दूसरे मंथ, बिकॉज ऐसे तो मैं 6 महीने में एक करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ. सो या लेट्स स्टे कनेक्टेड ऐसे ही विद Q&As, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो. टाटा, बाय बाय.